Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about what is a reading and what are the types of reading and how they help us to understand the gist of reading. Or if we have a passage, just like or we have a reading text, and there are some ambiguities and there are some problem that may be in our front of us, but we can tackle all that type of problems just in order to put focus over these types of readings. Basic readings क्या होती हैं? Reading skill that help us to understand the gist or the context or the text of the passage or the idea that is being written in front of us, or either it is related to any type of text. It is either it belong to computer text or language text. It doesn't mean that we have to read just one type of English text. Text mean any type of passage. The passage that looks like difficult to understand, or we can make that passage easy just in order to have a look over these types of readings. How can we get the idea of these things? We will discuss intensive reading, extensive reading, intensive and extensive, the difference together, and scanning and skimming. We have basic four types of reading. First one intensive reading, second one extensive reading, and third one scanning, and fourth one skimming. What are these four types of readings, and how can they help us to understand the passage or understand the text while we have in our day-to-day classroom? First of all, uh, be vigilant to see this lecture as well, but it's a very complicated, or it's a very comprehensive for you people to understand these things. Reading mean where we have to read. It's mean written passage जो होगा उसे जब हम पढ़ते हैं, that's mean reading. Reading to go through over the words, लफ्ज को गौर से पढ़ना, उन्हें देखना, ये हमारे पास reading के context में आता है. But we have different types of readings. First of all, intensive, extensive, scanning, and skimming. These are the four types, major four types. After that, first one, what is the intensive reading? Intensive reading, you need to have your aims clear in mind when undertaking intensive reading. जब इंटेंसिव रीडिंग को देखना है तो आपके जहन में साफ साफ पता होना चाहिए व्हाट इज योर पर्पस टू रीड दैट पैसेज. इंटेंसिव मीन इंटेंस. इंटेंस मतलब कि इरादा. what do you have, what type of intent? Intent मीन इरादा, किस किस्म का आपका पर्पस है. why you are here to read this passage. आप इस पैसेज को क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप क्या आपके पास टाइम है, और आप कह लें कि इसे ज़्यादा वक्त चाहिए, ये थोड़ी सी ज़्यादा डीप रीडिंग होती है निस्बत स्कैनिंग के और स्किमिंग के. स्कैनिंग और स्किमिंग हम पढ़ेंगे जैसे कि वहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वी जस्ट ट्राई टू लुक ओवर दैट इन्फॉर्मेशन, दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. वी डोंट बॉदर टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, बट इन इंटेंसिव रीडिंग वी आर बाउंड टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड. You need to have your aims clear in mind when undertaking intensive reading. आपको पता होना चाहिए कि आपने जब intensive reading करनी है तो आपको क्या इसमें से निकालना क्या है. Remember, this is going to be far more time consuming. ये ज़्यादा वक्त लेती है than scanning और skimming. Skimming और scanning के ज़्यादा निस्बत. स्कैनिंग भी हम आप कह लें कि जब स्कैन करना होता है, स्किम को हमने छोड़ना होता है. और आप कह लें कि इफ यू नीड लिस्ट द chronology ऑफ इवेंट्स इन अ लॉन्ग पैसेजेस, यू विल नीड टू रीड इट इंटेंसिवली. अगर आपके पास एक लंबा पैसेज है और आपको उसमें से हर चीजें मेजर निकालनी है, मीन एक पैसेज आप कह लें कि डॉक्टर्स के प्रोफेशन के ऊपर है, तो आपको उसमें से क्या निकालना है. आपको डॉक्टर्स होते क्या हैं वो डेफिनेशन निकालनी है, उसमें डॉक्टर्स की टाइप्स कितनी है आपको वो निकालनी है, उनकी मेजर फीचर्स क्या है आपको वो निकालनी है, या वो कितनी डिजीज को लेकर ऊपर काम करते हैं आपको वो निकालनी है. मतलब इट्स मीन यू हैव टू सी एंड यू हैव टू ओवरलुक ईच एंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग रिटन इन दैट स्पेसिफिक पैसेज. आपको उस पैसेज में जो भी लिखा हुआ है, आपका पर्पस है कि आप उस सारी चीजों को ढूंढें. अगर आप सारी चीजों को नहीं ढूंढते तो इट्स मीन यू आर नॉट डूइंग योर इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग इज नेसेसरी टू हैव और नेसेसरी टू सी each and everything in the passage that is front of you people, or that is being written in a page, or just you have in your exam. आपके पास एग्जाम में आ जाए, आपके पास कोई पेपर है उसमें से आपको गो थ्रू करना है, तो इट्स मीन इंटेंसिव का मतलब यही है कि आपका इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है. इट्स मीन आपको इंटेंसिवली फोकस करते हुए आपको हर एक एक एस्पेक्ट उसका निकाल के बाहर रखना है कि इसमें क्या चीजें बयान की गई हैं. सपोज let me give an example.
कि मैं आपसे कहता हूँ कि यू हैव वन पैसेज एंड यू आर बाउंड टू गिव मी अ होल डिटेल अबाउट दैट पैसेज. So what is your purpose? Your purpose is to find out each and everything that is being written in that specific passage that is assigned to you people. आपको जो पैसेज दिया गया है उसमें जो चीजें भी बयान की गई हैं, आपका मकसद ये है कि आपको उसमें से एक एक बात को निकाल के बाहर निकाल दें. ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, बस आप वही ढूंढेंगे. ऐसा भी नहीं है कोई तारीख लिखी आप वो डेट ढूंढ रहे हैं या पॉइंट लिखा आप जस्ट वही ढूंढ रहे हैं. लेकिन नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं कहा गया. आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक पैसेज है, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको सारी बाहर निकालनी है. तो इट्स मीन इफ यू आर बाउंड टू रीड इंटेंसिवली or you have got a great mind to get each and every aspect of that specific information, तो फिर आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं. आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर क्या कहता है जी, इंटेंसिव रीडिंग होती क्या है, ये है क्या? ब्राउन एक्सप्लेन दैट इंटेंसिव रीडिंग कॉल्स अटेंशन टू ग्रामेटिकल फॉर्म्स, discourse marker and other surface structures detailed for the purpose of understanding literal meaning, implications, rhetorical relationship and the like. It's mean आपको जो पैसेज दिया गया है आपके लिए जरूरी है उसकी ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है आपको पता चल जाना चाहिए, उसके अंदर कोई हिंट कौन से दिए गए हैं उसका पता चल जाना चाहिए, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है. यू आर वेरी मच फेमिलियर टू दैट specific meaning that are or that is implied to that passage. आपको उस पैसेज में मतलब ढूंढना आपकी मजबूरी है. आपके ऊपर उसके ऊपर बातें कौन सी इंप्लीमेंट की गई हैं, आपको वो बातें फाइंड आउट करना मजबूरी है आपकी. He draws an analogy to intensive reading as a zoom lens strategies. It's mean zoom करना. Do you understand? कि zoom करना आपको फोकस करना होता है, आपको एम्फसिस देना होता है कि आपको each and every aspect देखना है किसी इंटेंसिव रीडिंग में है क्या. अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप इंटेंसिव रीडिंग नहीं कर रहे. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूजुअली क्लासरूम बेस्ड होती है. मतलब इंटेंसिव रीडिंग जब भी होगी, टीचर ने आपको एक पैसेज दिया है, जैसे आपसे कहता है कंप्रीहेंड करो जी, या इसकी कंप्रीहेंशन कर दो. या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने 9th क्लास में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9th क्लास में आपको कंप्रीहेंशन पैसेज दिया जाता था. उसमें से आपको कहा जाता था इंग्लिश के लेक्चर में कि जी इसमें से इसके आंसर ढूंढने. एक पैसेज होता था, उसके नीचे मतलब ये देयर वाज अ पैसेज एंड एट द लास्ट ऑफ देयर वाज अ क्वेश्चन 5 to 10 and you were bound to ask and you were bound to find all the answers related to that questions. आपसे कहा जाता था कि भाई इस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ दो इसमें से, इस पैसेज में से. और इस क्वेश्चन के आंसर जो ढूंढने होते थे हमने, हेलो हेलो जी सर, आ रही है बस. मेरी जी बात सर. जी सर जी. मुझे लगा पता नहीं सो गए सारे. ठीक नहीं है. सर. नहीं सर नहीं. जी, हमें इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्लासरूम होती है. क्लासरूम के अंदर जो टीचर टास्क असाइन करता है कि बच्चे ये पढ़ें और मुझे बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है, वो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसमें दूसरी इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको इरादतन इसमें इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है और इरादतन टेक्स्ट को देखना पड़ता है कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं. स्टूडेंट जो है वो फोकस करते हैं लिंग्विस्टिक के ऊपर, मतलब ये लैंग्वेज है क्या है और इसका मतलब क्या है, सेमेंटिक्स मीनिंग को बोलते हैं, और सेमेंटिक डिटेल ऑफ रीडिंग क्या है, इसका ओवरऑल कंप्रीहेंशन क्या बनती है. फिर स्टूडेंट ये भी देखते हैं कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर कैसी है, डिस्कोर्स कैसी है, मतलब कि यहाँ पर कोई तंज तो नहीं किया गया, कोई किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं किया गया है. और स्टूडेंट ये भी आइडेंटिफाई करते हैं इसमें वोकैबुलरी कैसी है, टफ है, इजी है, नॉन इजी है, या किस तरह से इसे इस्तेमाल किया गया है. तो लिहाजा जो इंटेंसिव रीडिंग होगी आपको इरादतन करनी पड़ेगी और आपको उसमें से एक एक बात को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो उस पैसेज में बयान की गई होगी. इसका मटेरियल क्या होता है? अमूमन यूजुअली वेरी शॉर्ट टेक्स्ट होता है, नॉट मोर देन 500 वर्ड्स इन लेंथ होता है, चूजन फॉर लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड यूजुअली बाय द टीचर. टीचर इसे असाइन करता है और डिफिकल्टी इसमें अमूमन पाई जा रही होती है. chosen to provide the types of reading and skills that the teacher wants to cover in the course. और टीचर ये रीडिंग इसलिए देता है कि वो अपना मटेरियल, अपना कोर्स, अपना जो सिलेबस है उसे वो कंप्लीट कर ले. एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं इसमें? इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइज में इंक्लूड्स लुकिंग एट मेन आइडिया वर्सेस डिटेल. आपको मेन आइडिया इसका ढूंढना होता है क्या है, अंडरस्टैंडिंग देखनी होती है, व्हाट इज दैट इज इम्प्लाइड वर्सेस स्टेटेड. जो कहा गया वो नहीं देखना होता, उसके अंदर जो बात समझ आ रही होती है हमें वो देखना होता है.
फिर इसके अंदर इन्फ्रेंसेस होते हैं, रेफरेंसेस कौन कौन से हैं उनको देखना होता है, फिर आपको इंफॉर्मेशन का ऑर्डर देखना होता है कि वो इस मैसेज को किस तरह अफेक्ट करती है। क्या जो मैसेज दिया जा रहा है या ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तरतीब होनी चाहिए थी, पहले एक बात को हाईलाइट किया गया है फिर दूसरी के बाद हाईलाइट किया गया है, या बहुत एमेलगम बना दिया गया है। इसमें आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल से फोकस करना होता है। उसके बाद है हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जो आप प्लेयर के लिए करते हो, द रीडिंग दैट यू डू फॉर प्लेयर। आपने इंटरटेनमेंट करना है, कोई आप कह लेंगे नॉवल पढ़ना है आपने, और या आपने कोई डाइजेस्ट पढ़नी है, या आपने कोई स्टोरी पढ़नी है, बट यू डोंट बॉदर टू वरी अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट टेक्स्ट। आपको उसका टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा तो आप इसकी टेंशन नहीं लेते एक्सटेंसिव रीडिंग में। आप जब इंटेंसिव रीडिंग में टेक्स्ट पढ़ते हैं यू आर बाउंड टू गेट एवरी टाइप ऑफ मीनिंग दैट इज बीइंग रिटन। आपको एक एक लफ्ज का मतलब का पता होना बहुत जरूरी है, किसमें? इंटेंसिव रीडिंग में। लेकिन जब एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करती है तो वी डोंट बॉदर ओवर द वर्ड्स मीनिंग। हम वर्ड्स मीनिंग की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते, और हमारे लिए जरूरी भी नहीं होता। हमने बस प्लेयर के लिए पढ़ना होता है और मजे लेके पढ़ रहे होते हैं, और कोई बात नहीं समझ में आई तो बाहर में जाए, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, आप डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड लिख दिया समझ नहीं आ रही, आप उसके लिए डिक्शनरी ओपन नहीं करेंगे। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में आप एक एक पैसेज के लिए, एक एक वर्ड के लिए डिक्शनरी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग क्योंकि प्लेयर के लिए होती है, हम अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हैं, अपनी जॉय के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम इतना बॉदर नहीं करते कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इसके अंदर कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बताई कैसे जा रही है, फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब हम इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं करते। एक्सटेंसिव रीडिंग involves reading for player because there is an element of enjoyment in extensive reading. It is unlikely that students will undertake extensive reading of a text they do not like. क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग का पर्पस ही ये होता है कि आप उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं जो आपको पसंद है। कुछ बच्चों को पोइट्री पसंद है, वो पोइट्री पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को नॉवल पसंद है, वो नॉवल पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को ड्रामा पढ़ने पसंद है, वो ड्रामे पढ़ते हैं। इट्स मीन आपकी प्लेयर की बात की जा रही है, आपकी हैप्पीनेस की बात की जा रही है, आपकी एंजॉय की बात की जा रही है। और जो आपके एंजॉय, आपकी हैप्पीनेस या आपके प्लेयर की जब बात की जा रही है, इट्स मीन वहां पर चीजें अगर समझ नहीं आ रही तो आप उसके लिए बॉदर नहीं करते। अगर कोई रह भी गई है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात समझ नहीं आ रही तो हमें कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट आल्सो रिक्वायर्ड अ फ्लूइड decoding and assimilation of the text and content in front of you। सिर्फ आपने मतलब decode करना होता है, मतलब को समझना होता है और उसे assimilate करना होता है टेक्स्ट के साथ। अगर बात नहीं समझ आ रही तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर समझ आ रही है तो फिर भी कोई मसला नहीं। इट्स मीन इंटेंसिव रीडिंग जो होगी वो प्लेयर के लिए नहीं होगी, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होगी वो प्लेयर के लिए होगी। इंटेंसिव रीडिंग जो होगी वहां पर आपको एक एक लफ्ज का मतलब समझना जरूरी है, एक्सटेंसिव रीडिंग में एक एक वर्ड का मतलब समझना जरूरी नहीं है। इंटेंसिव रीडिंग जो होगी वो क्लासरूम में होगी, एक्सटेंसिव रीडिंग जो होगी वो आपकी प्लेयर के लिए होगी, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग होगा। इंटेंसिव रीडिंग जो है, इंटेंसिव हमेशा टीचर करवाएगा आपसे, लेकिन एक्सटेंसिव आप अपनी मर्जी से करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आपके पास है कि यस सर। कहता क्या है। एक आमिश, एक अपना अपना तुम माइक ऑन रखो, अगर मैं पूछूं कोई गेटिंग माय पॉइंट तो कम से कम रिप्लाई कर दो, मुझे पता चले आप जिंदा है सभी। What it is, ये है क्या? ब्राउन एक्सप्लेन करता है that extensive reading is carried out to achieve a general understanding of a text। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस पूरे पैसेज में आमतौर पर मालूमात क्या है। आपने एक एक लफ्ज को कंप्रीहेंड नहीं करना, आपने सिर्फ मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आ गया समझ तो फिर भी ठीक, ना आया तो बाहर में जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिचर्ड्स and Long identify extensive reading as occurring when students read large amount of high interest material। इंटरेस्ट मटेरियल इट्स मीन आपकी पसंद का मटेरियल, आपकी इंटरेस्ट का मटेरियल जब आप पढ़ते हैं उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर आपसे वो कहना चाह रहा है कि आप अपनी मर्जी से जब कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपके पास होगा। फिर अगेन जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो आप प्लेयर के लिए करते हैं। आप यहाँ पर क्या कहते हैं, कंसंट्रेटिंग ऑन मीनिंग। आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप कहते हैं कि यूजुअली आउट ऑफ क्लास होती है कंसंट्रेटिंग ऑन मीनिंग, ना ही आप क्लास के अंदर होते हैं, ना ही आपका ये होता है कि मीनिंग क्या चल रहा है इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। रीडिंग फॉर जिस्ट, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं। एंड स्किपिंग अननोन वर्ड्स, और जो लफ्ज आपको जिनके मतलब नहीं आते आप उनके ऊपर इंटरेस्ट लेते ही नहीं, उन्हें छोड़ ही देते हैं। ये एक्सटेंसिव रीडिंग में होता है।
करेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टूडेंट्स रीड एज मच एज पॉसिबल, स्टूडेंट उतना पढ़ लेते हैं जितना मुमकिन हो सकता है। अ वैरायटी ऑफ मटेरियल ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक्स इज अवेलेबल, बहुत ज़्यादा किस्म के मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, पोइट्री है, ड्रामा है, डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं, फिर डाइजेस्ट हैं। आपके लिए हर किस्म का मटेरियल आपको मिल सकता है एक्सटेंसिव रीडिंग के ऊपर। स्टूडेंट सिलेक्ट व्हाट दे वांट टू रीड, और स्टूडेंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है, लेकिन जबकि इंटेंसिव रीडिंग अपनी मर्जी से नहीं होती, वो टीचर्स देता है, वो एग्जाम होता है, वो क्लासरूम एक्टिविटी होती है। ये कोई क्लास नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई टीचर की इंटरेस्ट नहीं है, ये आपकी जाती इंटरेस्ट है यहाँ पर। द पर्पज ऑफ रीडिंग आर यूजुअली रिलेटेड टू प्लेयर, इसका मकसद होता है खुशी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम देना है इसलिए पढ़ रहे हैं, आपका दिल कर रहा है आप इसलिए पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत मालूमात चाहिए आप इसलिए पढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी को लेक्चर देना है आप इसलिए पढ़ रहे हैं, आप जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल। रीडिंग इज इट्स ऑन रिवार्ड, इसके अंदर आपने जितना पढ़ लिया उतना समझ आ गई, नहीं समझ पड़ा तो नहीं समझ आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल क्या हो सकता है जी? आप कह लेंगे कि इसमें मटेरियल है हमारे पास क्या करने के लिए, कि बहुत सिंप्लिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी होती है। द टीचर मस्ट चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रेडेड रीडर होते हैं अवेलेबल बाय मेजर पब्लिशर्स, ये उनके पास होते हैं जिनको ग्रेड मिलते हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज प्रेस जो है वो कुछ आप कह लें कि मैगजीन को पब्लिश करता है और उससे पूछता है जी आप इसमें से फाइंड आउट करके दें हमें चीज़ें अपनी खुशी के लिए। फिर these are readers with specific levels of words frequency and idiom counts and the introduction of new vocabulary at a planned rate, और यहाँ पर आप नई चीजें सीखते हैं, नई चीजों को पढ़ते हैं, और सिर्फ इंटरेस्ट की बेस पर होता है, वैसे नहीं होता है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये फर्क मैंने अभी आप लोगों को बताया है, कितनी बार मैंने ये रिपीट किया है कि इंटेंसिव रीडिंग जो है आपको कह लें कि वो क्लास के अंदर होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्लास के अंदर नहीं होती। इंटेंसिव रीडिंग में आपको एक एक लफ्ज समझना जरूरी है, एक्सटेंसिव में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। इंटेंसिव रीडिंग टीचर असाइन करता है, एक्सटेंसिव रीडिंग में आप अपनी मर्जी से साइन करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में अगर किसी लफ्ज का मतलब नहीं आता तो आप उसकी टेंशन लेते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग में किसी लफ्ज का मतलब नहीं आता तो आप उसकी कोई टेंशन नहीं लेते। फिर आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब आप कह लें कि स्कैन से निकला है स्कैनिंग, स्कैन कोई चीज स्कैन करना, ठीक है। अब स्कैन क्या करते हैं? पिक्चर योरसेल्फ विजिटिंग अ हिस्टोरिकल सिटी, कहते हैं तसव्वुर करो कि तुम एक हिस्टोरिकल शहर को विजिट करने जा रहे हो, गाइड बुक इन हैंड, और आपके पास एक किताब है जो आपको रहनुमाई के लिए है। कहता है यू वुड मोस्ट प्रोबेबली जस्ट स्कैन द गाइड बुक टू सी विच साइट यू माइट वांट टू विजिट। तो कहता है कि आपके पास उस शहर की एक की बुक है, एक आप कह लें कि मैप है, और आप सिर्फ उस हिस्से को ढूंढेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। सपोज हमने लाहौर को विजिट करना है और हम कहते हैं हम लाहौर में सबसे पहले जाएंगे जी, आप कह लें कि लाहौर फोर्ट जाएंगे। सबसे पहले हम लाहौर फोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। जब हम लाहौर फोर्ट की तरफ सबसे पहले बढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप उस मैप में से वहां पर शाही किला ढूंढ रहे होंगे, या आपको क्या लगता है आप लाहौर जू ढूंढ रहे होंगे, या आप वहां पर रेस कोर्स की पार्क ढूंढ रहे होंगे, या कोई आप कोई और विजिटिंग एरिया ढूंढ रहे होंगे? नहीं, आप सिर्फ वही आप कह लें कि लाहौर फोर्ट ही ढूंढ रहे होंगे। अगर आपने लाहौर फोर्ट की तरफ जाना है तो आप जस्ट लाहौर फोर्ट ही ढूंढेंगे। अगर आपको वहां पर जाना था, आप कह लें कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी जाना है, तो आप उस मैप के ऊपर जस्ट चिल्ड्रन लाइब्रेरी को स्कैन करेंगे। बकिया जो कुछ भी लिखा है आपकी नजर तो उसके ऊपर पड़ेगी, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपनी चीज को ढूंढ रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। जस्ट स्कैन करेंगे, जस्ट गेटिंग द थिंग। और आप कह लेंगे स्कैनिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग योर आईज टू क्विकली स्कल or skull across sentences and is used to get just a simple piece of information. You are bound to get just one information that is being scanning. आप जो स्कैन कर रहे हैं आप सिर्फ उसी चीज को ढूंढेंगे, उसके अलावा आप कुछ भी चीज नहीं ढूंढेंगे। क्लियर? जी सर। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? स्कैनिंग के बाद इसका आगे फीचर्स क्या बताता है हमें। कहता स्कैनिंग है क्या? स्कैनिंग इज क्विक रीडिंग, ये बड़ी तेजी से पढ़ने का अमल होता है। फोकसिंग ऑन लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आपने सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही ढूंढनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। स्कैनिंग इन्वॉल्व्स क्विक आई मूवमेंट, ये बड़ी तेजी से हम चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। सपोज मेरे पास एक पैसेज है और उसमें से मैंने लाहौर का नाम ढूंढना है, तो मैं सिर्फ लाहौर ही देख रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, अब बताएं जल्दी करें, क्लास हो रही है, क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आ जाता हूँ। हेलो, हेलो, ये
चलिए ठीक है, मेरे शायद मुझे भी लगता है डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, चुप कर दो, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि स्कैनिंग इन्वॉल्व्स क्विक आई मूवमेंट, नॉट नेसेसरली linear in fashion in which the eyes wander until the reader finds the piece of information needed. आपने सिर्फ वो information ढूंढनी है जो आपको require है. It means scanning वो है where we have to find any specific type of information. आपने कोई खास information ढूंढनी है, अगर वो खास information आप ढूंढते हैं तो उसे कहेंगे scanning, और scanning एक type है reading की. फिर आता है जी skimming. Skimming क्या है? Skimming is sometimes referred to as gist reading. ये आपने वो जिस्ट रीडिंग करनी है. स्किमिंग में हेल्प इन ऑर्डर टू नो व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट एज इट्स मोस्ट बेसिक लेवल. आपने जस्ट एक हल्का सा आइडिया लेना है उस पैसेज के बारे में कि इस पैसेज के बारे में है क्या. जैसे कि मैं कहूं, जी हाँ बिल्कुल, मैं जैसे कि मैं कहूं कि आपके पास एक अखबार है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर है आपके पास, ठीक है, और एक न्यूज़पेपर है, तो आप क्या करेंगे उसमें? क्यों बच्चों? न्यूज़पेपर है तो आप उसमें क्या करोगे? आप उसमें से एक एक लफ्ज नहीं ढूंढ रहे होंगे, आप जस्ट क्विक रिव्यू देंगे, ठीक है. स्किमिंग इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज जिस्ट रीडिंग. स्किमिंग में हेल्प इन ऑर्डर टू नो व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट एज इट्स मोस्ट बेसिक लेवल. यू माइट टिपिकली डू दिस विद अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर. हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम उसकी सुर्खियां पढ़ रहे होते हैं, बस हम उसके मेन पॉइंट पढ़ रहे होते हैं. हमने बस ये लेना होता है कि आज के अखबार में कौन सी बातें बताई गई हैं. हमने मेजर्स बातों को देखना होता है और बस क्विक आई व्यू देखते हैं. स्कैनिंग के अंदर हमने खास इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है. स्किमिंग के अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन में से मेजर क्रक्स को फाइंड आउट करना होता है. कहते जी वुड हेल्प यू मेंटली एंड क्विकली शॉर्ट लिस्ट दोज आर्टिकल्स विच यू माइट कंसिडर फॉर अ डीपर रीड. आप कह लें कि आपके पास एक न्यूज़पेपर है और आप उस न्यूज़पेपर में से मालूमात लेंगे, तो आप उस न्यूज़पेपर का एक एक लफ्ज नहीं पढ़ेंगे, आप उसमें से जस्ट ओवरव्यू लेंगे कि इस पूरे न्यूज़पेपर के अंदर आज की क्या क्या मेजर आपके न्यूज़ हैं. आप यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट स्पेसिफिक न्यूज़, दैट मेजर न्यूज़ दैट आर बीइंग पब्लिश्ड, जो उस न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई हैं, आप उन न्यूज़पेपर को फाइंड आउट करेंगे. इसके अलावा आप कुछ नहीं उसमें से ढूंढेंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी को देखते हैं मजीद क्या कहता है, डिफाइन क्या करता है. Skimming is a quick reading to get to know the general meaning of a passage. आपने ओवरऑल इस पैसेज का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, आपने वो फाइंड आउट करना है. अगर आप ओवरऑल पैसेज का पर्पस ढूंढते हैं, जस्ट पैसेज का पर्पस ढूंढते हैं, तो फिर आप उसे कहते हैं ये स्किमिंग है. और फिर कहता है जी कि अगर टू नो हाउ द पैसेज इज ऑर्गेनाइज, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द इंटेंशन ऑफ द राइटर. आपने सिर्फ ये उसमें से ढूंढना है, आपने कम से कम यही बताना है कि इसमें राइटर जो है वो बताना क्या चाह रहा है, राइटर कहना क्या चाह रहा है आपको, आप सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं. आपने ये बताना है कि इस पैसेज के अंदर या आज के अखबार के अंदर राइटर का जो इरादा था वो कुछ इस तरह से था. आपने सिर्फ वो चीजें बतानी है, उसमें से मेजर बातें बतानी है, बेसिक पर्पस बताना है कि आज की राइटिंग का पर्पस क्या था हमारे पास. इट्स मीन स्किमिंग में हम चीजों को ओवरव्यू लेते हैं, चीजों की ओवरव्यू बारे में जानना चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं लेते. फिर नेक्स्ट आपके पास है, ये स्किमिंग यूज कब होती है. स्किमिंग इज यूज्ड व्हेन रीडिंग सम जनरल क्वेश्चंस इन माइंड. Skimming is used in making decision on how to approach a text, such as we determining if our careful reading is deserving. Skimming is used to build students' confidence and an understanding that it is possible to gain meaning without reading every word in a text. इस बात के ऊपर जरा गौर करें. कहता सिर्फ मतलब ढूंढता है और एक एक लफ्ज पढ़ना जरूरी नहीं होता. स्किमिंग का मतलब स्पेसिफिक आप कह लें इंफॉर्मेशन नहीं देखना होता, हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन देखना होता है, ओवरऑल मालूमात हमें लेनी होती है इसके अंदर. फिर कहता क्या है जी, स्किमिंग एंड स्कैनिंग में फर्क क्या है. स्कैनिंग का मतलब आपको इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है, स्किमिंग का मतलब आपको पूरे पैसेज का ओवरव्यू देना होता है. स्कैनिंग में आपको कोई मालूमात ढूंढनी है, स्किमिंग में आपको जस्ट पैसेज का ओवरव्यू देना है, ठीक है. स्किमिंग जो होती है ये आप कह लें कि ओवरव्यू होता है स्किमिंग के अंदर, लेकिन जब स्कैनिंग होती है ये थोड़ी सी लिमिटेड एक्टिविटी है. जस्ट हमें एक मालूमात चाहिए, हम सिर्फ वही मालूमात देखेंगे, बाकी पैसेज को देखेंगे ही नहीं. लेकिन स्किमिंग में हम सारी मालूमात हल्की हल्की सी फाइंड आउट करेंगे. फिर ओवरव्यू बता दूं, 4 का इंटेंसिव रीडिंग वो है जो आप इरादतन करते हैं, अपनी क्लास में करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं,
और वो वहाँ पर आपका एग्जाम रिलेटेड हो सकता है, क्लास रिलेटेड हो सकता है, जबकि आपकी जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो आपकी प्लेयर के लिए होती है. In extensive reading you do that type of reading just in order to get pleasure or enjoyment, reading novel, reading poetry, reading short stories और digest. वहाँ पर जो एक्सटेंसिव रीडिंग होगी आप खुशी के लिए करेंगे. स्कैनिंग जो होगा वहाँ पर आप कोई खास इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए करेंगे. स्किमिंग जो होगा वहाँ पे आप पूरे पैसेज का ओवरव्यू लेने के लिए करेंगे. If you have any question you can make right now.